to my channel. I am Sushil Kumar in front of you, and today we are going to start exercise 5.2, right? इससे पहले लाइंस एंड एंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज मैं आपको करवा चुका हूं और उसके बाद हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी उसके ऊपर एक्सप्लेन किए हैं फॉर द एज एन एग्जांपल्स यू कैन से। और अभी हम एक्सरसाइज 4.2 में पहुंचे हैं। एक्सरसाइज 4.2 हम करते हैं कि कैसे लाइंस और एंगल की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आप डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, राइट? चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1, ये डायग्राम आपको विजिबल है अपनी बुक में, आप देखिएगा जैसा कि बोर्ड पे एग्जैक्टली मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे कुछ एंगल्स आपको नेम किए गए हैं 1 to 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? सो द क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन आपके पास है नंबर 1 पार्ट 1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है इफ ए पैरेलल टू बी, this line A parallel to B, if these two lines are parallel, these two lines are parallel, okay, then angle 1 is equal to angle 5 or not? What? See, angle 1 is equal to angle 5. If these two lines are parallel, then observe that these two angles are made same side to the transversal and above the both the parallel lines, okay? So they are both corresponding angles and the angles are equal also. So you will write answer, if A parallel to B, then angle 1 is equal to angle 5. Reason being corresponding angle. Reason being corresponding angles. Okay. So ये condition आपकी true है. Angle 1 is equal to angle 5. This is true statement, right? नाउ स्टेटमेंट नंबर 2 आप देखिए क्या गिवन है बच्चों आपको। स्टेटमेंट नंबर 2, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, कौन से एंगल है ये दोनों? दे बोथ आर इंटीरियर एंड दे बोथ आर ऑल्टरनेट, वन दिस साइड वन दिस साइड, सो दे बोथ आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दीज टू आर इक्वल एंगल्स यू कैन से, ओके। देन ए पैरेलल टू बी, यस, देखिए जहां पे दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइन हमेशा ये दोनों पैरेलल होंगे। इस क्वेश्चन में बच्चों देयर इज नो रोल ऑफ दिस लाइन एम, ये आपको एक्स्ट्रा लाइन कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे इस लाइन का कोई रोल नहीं है, ओनली दीज टू पैरेलल लाइंस एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल। बस आपको इसी पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट? सी, सो हम आंसर लिखेंगे इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, then A parallel to B, because if alternate interior angles are equal in measure, then the lines will be parallel. The lines will be parallel. That's why A parallel to B. A parallel to B. Okay, it is already written here. A parallel to B. See now, third part. What is the question in third part of this question? If angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree. This is given. Angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree. What is the property used here? Angle 4 plus angle 5. They both are co-interior angles in between the parallel lines and same side to the transversal. They both are co-interior. Their sum will be 180 degree. Okay? हमेशा होगा। If the lines are parallel, condition is that if A parallel to B, then only, okay? ऐसे ही आपका right side to the transversal angle 3 plus angle 6 will also be 180 degree. तो अगर आपको एंगल 3 गिवन है तो एंगल आप 6 निकाल सकते हैं, अगर 6 गिवन है तो 3 निकाल सकते हैं, राइट? इस पूरे डायग्राम में 1 to 8 एंगल्स में अगर बच्चों आपको एक एंगल गिवन है तो बाकी 7 एंगल्स आप प्रॉपर्टीज की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन भी लेंगे एग्जांपल्स में इसका। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, प्रॉपर्टी इज दैट को इंटीरियर एंगल्स, सो A parallel to B, so A parallel to B. Question number 3,
equal to then A parallel to B. So A parallel to B. Yes, this is true. Okay. So this was your question number 1. Using the properties of the parallel line with the transversal, you have to answer these questions. Okay. चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्या है क्वेश्चन नंबर 2? Question number 2. Question number 2 is in the adjoining figure. In the pair of alternate interior angles. Pair of interior angles vertically opposite angle. This is the diagram given in this question, and this is the A and B are parallel, C is the transversal. Line A and line B are parallel and C is the transversal. Now this is the question number 2 and this is the diagram given for respective question number 2. Okay, you have to answer these questions. See, what is the question number 1? Question number 1. In question number 1, pair of corresponding angle. Pairs of corresponding angles. All pairs of corresponding angles we have to find. So see कौन कौन से angles आपके पास corresponding होते हैं बच्चों? Same side to the transversal and both are above or below the parallel lines. Okay. So आप देखेंगे यहाँ पे angle 1 is equal to angle 8, right? Sorry, angle 4 is equal to angle 8. Angle 4 is equal to angle 8. Both are corresponding angles. Same side to the transversal and both are above the parallel lines. Similarly, angle 1 is equal to angle 5. Angle 1 is equal to angle 5. जो भी मेजर एंगल 1 का होगा वही मेजर एंगल 5 का भी होगा आपके पास. Similarly, angle 2 is equal to angle 6. Angle 2 is equal to angle 6. They both are also corresponding angles. Same side and below the parallel lines. Similarly, angle 3 and angle 7 also. Angle 3 is equal to angle 7. They all are corresponding angles. Okay. That's why they are equal. You can write corresponding angles. This is the reason they are equal. If measure of this angle is 110 degree, then this will also be 110 degree. If measure of this angle is 70 degree, then this will be also 70 degree. Okay. So similarly, you if measure of this angle is given, you can say this angle is also same measure, right? So चलिए अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन पार्ट 2 के लिए. क्या है पार्ट 2 में आपसे क्या पूछा गया है? What is the part 2? See, pair of alternate interior angles. This is done. Then second part. Alternate इंटीरियर एंगल्स, राइट? कौन कौन से एंगल्स के पेयर जो हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर है. मैं ये साइन एक बार रिमूव कर देता हूं. इक्वल टू के मैंने साइन जो लगाए थे एंगल्स पे, ये हम इसको इरेज कर देते हैं. दिस विल बी इक्वल, बट आपको बताने में थोड़ा सा दिक्कत ना हो, कंफ्यूज ना हो आप लोग, इसलिए मैं इरेज कर देता हूं. सी, राइट? ओके. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कौन कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है मेरे पास? सी, इंटीरियर की बात कर रहा है बच्चों, इस वर्ड पे फोकस करिए. इंटीरियर, इनसाइड द पैरेलल लाइंस. सो एंड ऑल्टरनेट आल्सो, one this side, and interior mean both the inside the parallel lines. So angle 3 is equal to angle 5. So you will write here angle 3 is equal to angle 5, right? And angle 2 is equal to angle 8, and angle 2 is equal to angle 8. So they both are alternate इंटीरियर एंगल्स. ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है मेरे पास. ओके.
सो इस तरीके से आप इनका भी मेजरमेंट बता सकते हैं। इफ एंगल 3 इज गिवन यू कैन से एंगल 5 इज द सेम, एंगल 2 जितना होगा वही एंगल आपका 8 का मेजर होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं पार्ट थर्ड के लिए। क्या है पार्ट थर्ड में आपसे क्या पूछा गया है? पार्ट थर्ड में बच्चों आपसे पूछा गया है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ओनली, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स में ऑल्टरनेट इंटीरियर की बात नहीं कर रहा है, दिस इज टॉकिंग अबाउट द को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, यहाँ पे एंगल्स का सम 180 होता है। सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी 180 डिग्री, दे आर को इंटीरियर एंगल्स, और यू कैन से पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, राइट? सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी 180 डिग्री ऑलवेज। सो यू कैन राइट हियर angle 3 plus angle 8 is equal to 180 degree, angle 2 plus angle 5 is equal to 180 degree, right? So they are co-interior angles, you can say. यहां पे बच्चों आपको ध्यान करना है कि को इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होता है, यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 5 सेम साइड टू द ट्रांसफर, तो दोनों ही सेम साइड में हैं, और इंटीरियर आल्सो। ओके, तो यहाँ इन दोनों का सम 180 होगा, ऐसे ही लेफ्ट साइड में दोनों का सम 180 होगा आपके पास। ठीक है, चलिए अब हम आइडेंटिफाई करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं। नंबर 4, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं आपके पास? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मीन व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर द एंगल मेड बाय शेयरिंग अ पॉइंट एंड विदाउट शेयरिंग द रेस। रेस कॉमन नहीं होना चाहिए, पॉइंट कॉमन होगा आपके पास। तो एंगल 3 एंड एंगल 1 दे बोथ आर vertically opposite angle. Angle 2 and angle 4 both are vertically opposite angle, right? So you will write here angle 1 is equal to angle 3, angle 2 is equal to angle 4. Similarly in this pair यहाँ पे क्या है? This line intersecting this line, so angle 8 and 6 both are vertically opposite angle. Angle 8 is equal to angle 6 and angle 5 is equal to angle 7. These are the 4 pairs of vertically opposite angles. Reason being vertically opposite angles. ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। अभी हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को अच्छे से। इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा डेफिनेटली कुछ और एग्जांपल्स के साथ। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सी if AP parallel to Q, if line P parallel to Q, this is the diagram given for this question, and these are the angle made here. We have to find out the measurement of these angles, right? Then here given 125 degree, and one more angle is given E and F. These are the unknown angles. Okay. So now I am writing their measurement as per the given values. Now see this diagram carefully. There is two parallel lines P and Q. This is P line and this is Q. They both are parallel. It is given. They both are parallel. We have to given this. So this become transversal. We are naming this line M. This line M is transversal. Okay. So this angle is given 125 degree and you have to find the measure of these all angle A, B, C, D, E, F, right? तो as per the properties of parallel line हम इनकी properties देखेंगे कौन सा measurement कहाँ कैसे कितना होगा। ओके, तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों? सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं कि this angle D, हम इसको नेम दे देते हैं एंगल को कुछ भी। आप बताइए क्या नेम देना है? A, B, C, D, E, F, हम इसको X नेम दे देते हैं, राइट? So I am naming this angle X. Now find out the measure of all these angles. Okay. So solution part. हम solution part में आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे आप एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे। वेरी फर्स्ट आप ये देख सकते हैं एंगल X एंड एंगल D both are
corresponding angles, angle X and angle D. Okay, so you will write here angle X is equal to 125 degree. This is given. This is given to you. आप इसको given में लिखेंगे? Yes, exactly. This is correct. So now number one, I can say angle D is equal to angle X. Reason being corresponding angle. Reason being corresponding angles. So you can say easily this angle is equal to, if measure of angle X is you have 125, so angle D is equal to 125 degree. ये आपका एक एंगल का मेजर आ गया बच्चों, ये आपका आंसर आ गया है. पुट द आंसर इन बॉक्स. ओके, चलिए अब सेकंड पार्ट में चलते हैं. नेक्स्ट एंगल फाइंड आउट करते हैं. नाउ यू कैन से एंगल डी एंड एंगल बी बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. दे बोथ आर वर्टिकली अपोजिट. ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, दोनों एंगल इक्वल होंगे. सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. रीजन बीइंग vertically opposite angles. So you can say angle B is equal to 125 degree. ये आपके पास एक और एंगल का मेजर आ चुका है, राइट. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. और कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा? बस अब इक्वलिटी का कंडीशन खत्म हो गया. अब हमें एक एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ ईदर लीनियर पेयर और कोइंसिडेंट एंगल्स. ओके, तो हम यहां से पहले ई एंगल का मेजर निकाल लेते हैं, बिकॉज दिस ई एंगल इज मेकिंग, ये देखिए ये जो आपका ई एंगल है, दिस इज ई प्लस एक्स. ये दोनों एंगल आपका स्ट्रेट लाइन पे, दिस स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है. सो आप बोल सकते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री, राइट. पार्ट थर्ड में हम करते हैं एंगल ई प्लस एंगल x is equal to 180 डिग्री, राइट. सो अब देखिए आप कैसे इसका मेजरमेंट फाइंड आउट कर देंगे. एंगल x का वैल्यू आपके पास पहले से है, आप पुट कर दीजिए एंगल e प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट. एंगल e इज इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री. ओके, सो एंगल e आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? एंगल e आपके पास बच्चों आ जाएगा, दिस माइनस कर दीजिए 5, ओके, एंड 7 माइनस 2 5, 55 डिग्री आपके पास ये मेजरमेंट आ गया है. सो वेरी फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल. एंगल डी 125, दिस इज आल्सो 125 एंड दिस इज 55 डिग्री. ओके, ये 55 डिग्री आपके पास आ गया. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये आपके पास आ गया है. नाउ फोर्थ पार्ट में हम लेके चलते हैं. ओके, अब आप क्या कह सकते हैं बच्चों? एंगल ई एंड एंगल एफ बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. दे बोथ आर वर्टिकली अपोजिट. जितना एंगल ई का मेजर होगा उतना ही एफ का होगा, बिकॉज दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर. सो यू कैन राइट एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई. रीजन बीइंग वर्टिकली opposite angles, right. So angle E का मेजर आपके पास पहले से है 55, so angle F will also be 55 डिग्री. एक एंगल का मेजर आपके पास और आ गया, राइट. अब देखिए, अब फिर से आप इस डायग्राम में देखेंगे कि एंगल E एंड एंगल A बोथ आर कोरोस्पोंडिंग एंगल, राइट और नॉट. एंगल E एंड एंगल A बोथ आर कोरोस्पोंडिंग, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. दोनों ट्रांसवर्सल के ऊपर बने हुए हैं और दोनों ही पैरेलल लाइंस के दिस साइड बने हुए हैं. सो एंगल E इक्वल टू एंगल F. ओके, आप लिखेंगे नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन. थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, नो इश्यू, आप समझ गए हैं. एंगल A इज इक्वल टू एंगल F. रीजन बीइंग corresponding angles. Okay, so measure of angle A will also be 55 degree. ये भी आपके पास 55 डिग्री हो जाएगा. एक एंगल और आ गया आपके पास, राइट. अब आप एंगल C भी निकाल सकते हैं. हाउ? एंगल C एंड एंगल A बोथ आर, ये आपके पास 55 डिग्री आया है एंड दिस इज आल्सो 55 डिग्री. आप यहां से भी A निकाल सकते हैं. एंगल C इज इक्वल टू एंगल F आल्सो कोरोस्पोंडिंग
एंगल, आप कोई भी प्रॉपर्टी लगाएं, ओके। सो एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ कोरोस्पोंडिंग एंगल, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो यहाँ पे आप लिखेंगे, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट पार्ट, मुझे ऊपर करना पड़ेगा। चलिए यहाँ कर लेता हूँ, लास्ट का एंगल मेजरमेंट फाइंड आउट करना है मुझे। सो सिक्स्थ पार्ट, एंगल C is equal to angle A, reason being vertically opposite angles, right? So angle C is equal to also 55 degree। ये आपका आंसर हो गया बच्चों सभी क्वेश्चंस का, ओके। इसके सारे एंगल्स हमने फाइंड आउट कर दिए एक्सेप्ट दिस वन एंगल, बस एक एंगल छोड़ दिया हमने, ये हमसे पूछा नहीं गया था, ओके। So many properties we have used here to find out the missing unknown angles, okay। hope उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे अच्छे से, okay। Thank you so much for watching this channel, and in next video हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 and ahead rest parts of this exercise। Thank you so much।